कहाँ वैक्सीन्स और भेजनी हैं और कितने हेल्थ केयर वर्कर्स हों या कितने फ्रंट लाइन वर्कर्स हों उनको वैक्सीन्स लगी हैं, कितने लोगों को फर्स्ट डोज लगा है, कितने लोगों को सेकेंड डोज लगा है। तो यही सब तरह की चीज़ें जो हैं एक अलाइंड और सिमेट्री में जो पूरा डेटा जो सरकार के पास मौजूद रहा पूरे समय जब से यह टीकाकरण अभियान जब से शुरू हुआ जनवरी से, हमने देखा है कि तकरीबन हर हफ्ते हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस वार्ता में हर डेटा को सामने रखा जाता है और ये कोविन पोर्टल के कारण ही संभव हो पाया है कि एक सिमेट्री के हिसाब से जो डेटा है वो पूरा प्रोक्योर किया जा रहा है। उसके साथ ही सिक्योरिटी जो पूरी सिक्योरिटी है आपके डेटा की वो भी मेंटेन की जा रही है। कोई तरीके का अभी तक सिक्योरिटी ब्रीच नहीं पाया गया है और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम एक बहुत बड़े क्लाउड डेटा की बात कर रहे हैं इस समय। क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशंस कराए हैं, OTP जनरेट करके अपना वैक्सीनेशन का एक्नॉलेजमेंट लिया है। तो एक तरीके से देखें तो सिक्योरिटी बहुत बड़ी प्रायोरिटी बनती है इतने रोबस्ट सिस्टम में और सिक्योरिटी को भी मेंटेन किया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जब इतनी सारी फीचर्स के साथ कोई पोर्टल सामने आया है और खासकर जब वैक्सीनेशन की गति सबसे ज़्यादा अहम है, वैक्सीन की उपलब्धता और गति, ये दो चीज़ें आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अहम है। वैसे समय में अगर कोई ऐसा इक्विटेबल मॉनिटरिंग सिस्टम अगर कहा जाए तो कोविन पोर्टल बन के सामने आया है और खासकर भारत जैसे बड़े देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या के देश में जब कोई पोर्टल कारगर साबित होता है तो ऐसे में दूसरे अन्य देश भी अगर इसको इस टूल को अपनाना। जी मेघना आइए सीधे रुख करते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन की। डिस्टिंग्विश्ड मिनिस्टर्स, सीनियर ऑफिसर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स and friends from all over the world. Namaskar. I am delighted that such a large number of experts from various countries have joined us for the CoWIN Global Conclave. At the outset, I convey my sincere condolences for all the lives lost to the pandemic in all the countries. There is no parallel to such a pandemic in 100 years. Experience shows that no nation, however powerful that nation is, can solve a challenge like this in isolation. The biggest lesson from the COVID-19 pandemic is that for humanity and the human cause, we have to work together and move ahead together. We have to learn from each other and guide each other about our best practices. Right from the beginning of this pandemic, India has been committed to sharing all our experiences, expertise, and resources with the global community in this battle. Despite all our constraints, we have tried to share as much as possible with the world. And we remain eager to learn from global practices. Friends, technology is integral to our fight against COVID-19. Luckily, software is one area in which there are no resource constraints. That is why we made our COVID tracking and tracing app open source as soon as it was technically feasible. With nearly 200 million users, this Arogya Setu app
is readily available package for developers. Having been used in India, you can be sure that it has been tested in the real world for speed and scale. Friends, vaccination is the best hope for humanity to emerge successfully from the pandemic. And right from the beginning, we in India decided to adopt a completely digital approach while planning our vaccination strategy. In today's globalized world, if the post-pandemic world has to return to normalcy, such a digital approach is essential. After all, people must be able to prove that they have been vaccinated. Such proof must be safe, secure, and trustworthy. People also must have a record of when and where and by whom they have been vaccinated. Given how precious is dose of the vaccines each, governments are also concerned about making sure that each dose is tracked and wastage is minimized. All of this is not possible without an end-to-end digital approach. Friends, Indian civilization considers the whole world as one family. The pandemic has made many people realize the fundamental truth of this philosophy. That is why our technology platform for COVID vaccination, the platform we call CoWIN, is being prepared to be made open source. Soon, it will be available in any and all countries. Today's conclave is the first step to introduce this platform to all of you. This is the platform through which India has administered 350 million doses of COVID vaccines. A few days ago, we vaccinated about 9 million people in one day. They do not need to carry around fragile pieces of paper to prove anything. It is all available in digital format. But best of all, the software can be customized to any country as per their local requirements. You will find out a lot more about the technical details in the conclave today. I'm sure you are keen to start, and I do not want to keep you waiting. So, let me conclude by extending my best wishes to all of you for a very productive discussion today. Guided by the approach of One Earth, One Health, humanity will certainly overcome this pandemic. Thank you. Thank you very much. तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में अपने संबोधन में बहुत साफ कहा। उन्होंने शुरुआत में ही विभिन्न देशों के स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों का कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में स्वागत करते हुए कहा कि अकेले कोई भी देश इस महामारी का समाधान नहीं ढूंढ सकता है। भारत की शुरुआत से ही अपने संसाधनों और विशेषज्ञता में वैश्विक इस्तेमाल पर बल दिया है और उसी का एक तरह से ये परिणाम है कि इस महामारी से निपटने में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है और कोविन
पोर्टल जिसके जरिए भारत में टीकाकरण की शुरुआत की गई थी वो बेहद विश्वसनीय है। उसके परिणाम जिस तरह के अभी तक आए हैं, अभी तक के सफर में इसे ओपन सोर्स के तहत ही डेवलप किया गया था और आज से वो तमाम अन्य देशों के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए इस कॉन्क्लेव से उसकी शुरुआत होगी, जिसमें प्रधानमंत्री ने कई बातों को रखा और उन्होंने कहा कि भारत ने अपना एक डिजिटल दृष्टिकोण रहा भारत का टीकाकरण अभियान में शुरुआत से ही, और उसने एक तरह से उस सपने को साकार किया जिसमें इतनी बड़ी जनसंख्या में टीकाकरण को सफल बनाना था। आज की तारीख में कोविन पोर्टल के इस्तेमाल से लोग जानते हैं कि उन्होंने कब और कहां टीका लगवाया, और इसी तरह की व्यवस्था अन्य देशों के लिए है, खासकर उन देशों के लिए जहां पर प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी को लेकर अभी उस तरह से किसी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर को विकसित नहीं किया गया है, उनके लिए बेहद मददगार साबित होगा। और आइए अन्य खबरों में देखते हैं क्या है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज पठन और संख्यात्मक कौशल में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल यानी निपुण भारत कार्यक्रम की वर्चुअल तरीके से शुरुआत की। इस दौरान एक लघु वीडियो, गीत और निपुण भारत के कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यालय, शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और संस्थानों के प्रमुख ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात को भरपूर उजागर करती है कि स्कूल शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता कक्षा 3 तक यानी कि 3 वर्ष से 9 वर्ष तक मूलभूत साक्षरता एवं ज्ञान, जो संख्या का ज्ञान है, उसकी सार्वभौमिकता हर हालत में प्राप्त होनी चाहिए। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात को लगातार दोहराती है और इस बात पर भी चिंता प्रकट करती है और उसका समाधान मांगती है कि मूलभूत शिक्षण को स्कूलों में ही पूरा किया जा सके। गोमती रिवर फ्रंट विकास परियोजना में घपलों की जांच कर रही सीबीआई ने आज कई स्थानों पर छापेमारी की। खबर है कि आज तड़के 40 से अधिक ठिकानों पर शुरू हुई इस छापेमारी में कई वरिष्ठ इंजीनियरों के घरों की तलाशी ली जा रही है। याद रहे कि गोमती रिवर फ्रंट विकास परियोजना उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल की अहम योजना थी। इस परियोजना में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद सीबीआई मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र पहले ही दिन जमकर यहां हंगामा हुआ। हंगामा करने के आरोप में 12 बीजेपी विधायक 1 साल के लिए निलंबित किए गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते अपने संवाददाता शिशिर सेलार से। जी शिशिर, क्या जानकारी इस पर? और महाराष्ट्र के विधानसभा सत्र आ चुके, आज का पहला दिन था, तो पहले दिन में हमने देखा कि पूरा हंगामा दिखाई दिया। जो लोअर हाउस है असेंबली और जो अपर हाउस है उसमें भी हंगामा दिखाई दिया, क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा था। तो ऐसे में किस प्रकार से ओबीसी समाज को जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो मिले, ये कहीं ना कहीं चर्चा दोनों सदनों में थी। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से एक जो है रिजर्वेशन पास किया गया था, जिसके तहत केंद्र सरकार से ओबीसी के बारे में जो एम्पिरिकल डेटा है वो मांगने की जो है उसमें सरकार ने कोशिश की थी, और इस प्रकार का एक प्रस्ताव जो है सरकार ने आज पारित किया था। लेकिन अपोजिशन का ये कहना था, जिस प्रकार से इससे पहले भी कोर्ट में ये मसला चल रहा था और कोर्ट के आदेश अनुसार एक कमेटी भी गठित की गई थी, उस कमेटी ने हालांकि ये इससे पहले ही कहा गया था कि जिस प्रकार से अगर बीजेपी ओबीसी समाज को अगर राज्य में पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना है तो इसके लिए राज्य सरकार को जो है राज्य मागास वर्ग बैकवर्ड कमीशन उनके जरिए एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार का उस कमेटी में आदेश दिए गए थे, निर्देशित किया गया था। तो उसके अनुसार काम करना जरूरी है, क्योंकि सरकार ने इस बारे में किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया और एक रिजोल्यूशन पास किया। उस रिजोल्यूशन के तहत केंद्र सरकार से ये कहा गया है कि वो जो है एम्पिरिकल डेटा ओबीसी के बारे में जो है मुहैया करा दे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में खासी हुई, और इसी की वजह से जो कुछ लोग थे वो बेंच में आ गए थे विधानसभा के, और साथ ही साथ कुछ लोग जो है उन्होंने घोषणा भी की थी। हालांकि इसके बाद जो है विधानसभा सदस्य जो है वो बेंच से बाहर निकले, हाउस से बाहर निकले, और जो लोकसभा जो विधानसभा के स्पीकर है, जो स्पीकर इंचार्ज है, उनके कैबिन में गए। वहां पर भी अगर देखा जाए तो दोनों पक्षों की तरफ से जो है वहां पर कहासुनी हुई, और इसको लेकर जो है जो स्पीकर इंचार्ज उन्होंने निर्णय लिया है कि बीजेपी के तकरीबन 12 विधायक थे इस पूरे वाकये में, उन 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है।
हालांकि इसके ऊपर अगर बात करें तो विपक्ष के नेता महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब कहा कि एक दफा है इंचार्ज लिया, उनकी कोई बात जो है सुनने नहीं गई। और दूसरे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हंगामा हुआ उसमें तो सत्ता पक्ष के जो सदस्य थे वो भी शामिल थे, लेकिन बावजूद इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई और सिर्फ विपक्ष के सदस्यों पर ही कार्रवाई की गई है। हालांकि इसके बारे में अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष ने भी अपनी जो है बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से विपक्ष जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसको खंडित करने की कोशिश की, इसीलिए यह कार्रवाई हुई है। हालांकि आज का यह पहला ही दिन था, ऐसे में बहुत सारे मुद्दे चर्चा में आने थे, खास तौर पर मराठा आरक्षण को लेकर और साथ ही साथ ओबीसी के राजकीय आरक्षण को लेकर जो मुद्दा था महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। हालांकि इस मुद्दे को लेकर ही आज जिस प्रकार से दोनों पार्टी सत्ता पक्ष विपक्ष जिस प्रकार से कहा सुनी हुई है, ये कहीं ना कहीं खड़े करता है कि 2 दिन का सत्र इस प्रकार से विधायक आएगा, जो प्रतिपक्ष है किस प्रकार सामने आएगा, अब ये कहीं से बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा है। अगर दोनों दिन के सत्र में अगर देखा जाए तो कल सरकार जो है सप्लीमेंट्री डिमांड्स जो है पेश करने वाली है, तो ऐसे में सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर भी चर्चा होगी। तो ऐसे में अब सत्ता पक्ष क्या रुख अपनाता है और विपक्ष चूंकि उसके 12 विधायक जो है निलंबित किए गए हैं, क्या रुख अपनाता है ये देखना होगा। शिशिर, महाराष्ट्र विधानसभा का पहला दिन एक तरह से मानसून सत्र का, और मानसून सत्र सरकार पर, महाराष्ट्र सरकार पर यह माना जा रहा था कि वो पहले से ही कई तरह के भ्रष्टाचार, पैसे की उगाही और खासकर पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को लेकर जो मामले सामने आए हैं उसमें घिरी दिखाई दे रही थी। ऐसे में बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर देने की कार्रवाई, क्या लगता है इस पूरे सत्र के दौरान ये काफी भारी पड़ने जा रहा है महाराष्ट्र सरकार को? बिल्कुल, देखिए कल की अगर बात करें तो कल सदस्यों से पहले ही विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस से बात स्पष्ट कर दी थी कि जिस प्रकार से सरकार ने जो है जिस प्रकार से लेजिस्लेटिव टूल कहते हैं, या फिर हम प्रश्नकाल की बात करें या कॉलिंग अटेंशन मोशन की बात करें, तो ऐसे किसी भी आयुध का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन का ये सेशन था। तो ऐसे में सप्लीमेंट्री डिमांड्स और जो बिल्स सरकार ने इसमें रखे थे सिर्फ उन पर ही चर्चा होने की संभावना थी और चर्चा की अनुमति थी, ये उन्होंने कहा था। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया था कि 2 दिन के अधिवेशन में सरकार नहीं चाहती कि किसी असहज मुद्दे पर चर्चा की जाए सदन में। इसीलिए परिस्थिति जिस प्रकार से की जो देखा जाए कई घिरे हुए, तो ऐसे में किसान हो या फिर कोरोना की स्थिति हो या फिर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की अगर बात करें तो इन किसी भी मुद्दों पर विपक्ष का कहना है कि सरकार बातचीत करना नहीं चाहती और इसीलिए महज 2 दिन का अधिवेशन रखा है। और इस 2 दिन के अधिवेशन में भी जो है प्रश्नकाल समेत जो बाकी लेजिस्लेटिव टूल्स हम जिसे कहते हैं, जिसका एक सदस्य जो उठा के कई सारे सवाल जनता के सदन में रखता है, वो इस्तेमाल करने की इजाजत मेंबर को नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष ने कहा है कि डेमोक्रेसी को भी ना और खास लोकशाही को ताला लगाने की कोशिश सरकार कर रही है। तो ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं फ्रंट पर था कल से ही पूरा देखा जाए। जब सेशन शुरू हुआ ऐसे में ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा था वो स्पष्ट रूप से सामने रखा गया था, क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे मैंने कहा कि इस वक्त अगर देखा जाए घड़ी में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा और मराठा आरक्षण का मुद्दा 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ऐसे में राज्य सरकार को उस पर अपना रुख स्पष्ट करना जरूरी था। इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष राज्य सरकार को घेरने की कोशिश और आज जिस प्रकार से बातचीत करता है, कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि विपक्ष जो करना चाहता है, जो किस प्रकार से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें सफल भी होता दिखाई दे रहा है। हालांकि विपक्ष के 12 इस वक्त एमएलए अगर देखा जाए तो उनको निलंबित कर दिया गया है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बिहेवियर फॉलो नहीं करने की वजह से ये उन जो है लगाया गया है। और इसीलिए कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो विपक्ष इस वक्त और आक्रामक भी हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कल क्योंकि आखिरी दिन होगा और कल ही सप्लीमेंट्री डिमांड जो है रखी जाएगी। तो ऐसे में सप्लीमेंट्री डिमांड पास करने में विपक्ष किस प्रकार से भूमिका निभाता है, अभी यह भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। जी शिशिर, आमतौर पर देखा गया है कि इस तरह का जब हंगामा होता है या विपक्ष द्वारा हंगामा किया जाता है तो चेतावनी दी जाती है, वार्निंग दी जाती है, लेकिन क्या पहली ही कार्रवाई के तहत और वो भी 1 साल के लिए निलंबित कर देना 12 विधायकों को, क्या महाराष्ट्र सरकार पर बढ़ते विपक्ष का दबाव भी दिखाई देता है? बिल्कुल, देखिए मुद्दों की बात करें तो मुद्दों में कहीं ना कहीं विपक्ष हर बार जो है सत्ता पक्ष पर आगे दिखाई देता है।
अगर इसका उदाहरण अगर देखिए तो शिशिर आपको अगर देखिए जी शिशिर आपको रोकना चाहेंगे, उससे पहले एक नजर डालते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का क्या कहना है आज जिस तरह से 12 विधायकों को निलंबित किया गया 1 साल के लिए। मेरे ऊपर शायद कल कोई प्रस्ताव भी ला सकता है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, तालिका अध्यक्ष ने एक तरफा बात कही और उस पद पर बैठने के बाद वहां पर जो बोलते हैं उनको अधिकार है और उसके बाद हमको बोलने नहीं दिया जाता। और इसलिए मेरा मानना यह है कि उन्होंने पूरी बात नहीं कही है। हाँ, ये जरूर है, मैं इस बात को बिल्कुल मान्य करता हूं कि 2 बातें हुई, लेकिन उसमें हमारी तरफ से किसी ने गाली नहीं दी और ये पहली बार नहीं हुआ। मैं 22 साल से विधानसभा में हूं, हर अधिवेशन में यह होता है। हम लोग जो विपक्ष में थे या वो भी विपक्ष में थे तो विपक्ष अध्यक्ष जी के यहाँ जाता है, 5 मिनट जोर जोर से बातचीत होती है, उसके बाद सब शांत होते हैं और हम गले मिलकर बाहर निकले। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत बात है। जी शिशिर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, हमने देखा जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का भी यही कहना है कि आमतौर पर इस तरह का माहौल विधानसभाओं में रहता है और एक विरोध रहता है जो कि कुछ समय के बाद खत्म होता है, अध्यक्ष उसको शांत कर लेता है। लेकिन जो कार्रवाई की गई है 12 विधायकों को निलंबित करने की, क्या ये ज्यादा कठोर कार्रवाई दिखाई देती है? इसके पीछे कुछ मंशा जिसका कि उन्होंने शक जाहिर करा है देवेंद्र फडणवीस ने। बिल्कुल, देखिए, हालांकि इससे पहले भी ऐसे कई सारे वाकये विधानसभा में घटित हो चुके हैं और उस दौरान अगर देखा जाए तो जो स्पीकर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मध्यस्थी करते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष में, और जो कहा सुनी होती है उसमें कहीं ना कहीं बीच का रास्ता ढूंढ के निकालते हैं। लेकिन चूंकि आज जो घटना घटी है इसमें हम देख पा रहे हैं कि तालिका अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है, इमीडिएटली जिस प्रकार से घटना घटी उसके कुछ ही मिनटों बाद ये फैसला लिया गया था। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने ये स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ एक तरफा बात जो है सुनी गई है। जो तालिका अध्यक्ष थे, जो पीठासीन अधिकारी थे, उनके जरिए से एक तरह की बात सुनी गई है, उस पर जो है दूसरी जो पहलू था उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे हमने पहले सवाल दोहराया था कि किस प्रकार से विपक्ष इस वक्त है, तो विपक्ष कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि तकरीबन अगर बात करें हम जिस प्रकार से कोरोना काल में तकरीबन 4 अधिवेशन सत्र बुलाए गए हैं, ये 4 अधिवेशन सत्र की अगर हम मियाद देखें तो तकरीबन 14 दिन तक ही ये 4 अधिवेशन सत्र जो बुलाए गए थे, उससे ज्यादा चूंकि ज्यादा सत्र बुलाए नहीं गए थे। तो विपक्ष का ये भी कहना है कि चूंकि सरकार जो है अधिवेशन से भागना चाहती है, विपक्ष के मुद्दों से भागना चाहती है, विपक्ष के सवालों से भागना चाहती है और इसीलिए सदन में उन सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है। और इसीलिए जो सरकार है कहीं ना कहीं जो ड्यूरेशन है सेशन का, सत्र का ड्यूरेशन होता है, वो कहीं ना कहीं सरकार कम कर रही है। तो ऐसे में ये पहला मुद्दा है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा आज स्पष्ट कर दिया था विपक्ष ने कि ये सारे जो मुद्दे हैं वो अगर मुद्दे सदन में अगर नहीं उनको कहने दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि वो सदन के बाहर इन सभी मुद्दों को उठाएगी। हालांकि आपने कहा कि जिस प्रकार से अनेक मुद्दों पर इस वक्त सरकार के लिए, फिर चाहे वो अनिल देशमुख की हम बात करें जो कि पूर्व गृह मंत्री राज्य के थे, या फिर साथ ही साथ हम बात करें सरकार की कोरोना स्थिति को जिस प्रकार से हैंडल किया